Hello. Today in this video we are going to discuss about network protocols. We will discuss about what is network protocol and what are different kind of network protocols we use in the communications. So let's start with the basic introduction. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. सो दीज आर जस्ट सेट ऑफ रूल्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन एन ईजी वे, रिलायबल एंड सिक्योर वे. तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं आर जस्ट सेट ऑफ रूल्स कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सचेंज किया जाए ईजीली, रिलायबली एंड इन द सिक्योर वे. So, before we discuss the most common protocols used to transmit and receive data over a network, we need to understand how a network is logically organized or designed. The most popular model used to establish communication between two systems is the Open System Interface OSI model, and the second one is TCP/IP मॉडल. अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सा दो मॉडल्स हैं जिनको हम ओपन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ OSI मॉडल एंड द सेकंड वन इज़ TCP/IP मॉडल. OSI मॉडल को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल मॉडल बोल सकते हैं एंड द सेकंड वन TCP/IP मॉडल इज़ नोन एज वेरी प्रैक्टिकल मॉडल. OSI model is described in 7 layers and TCP/IP model is described in 5 layers. Each and every layer uses some protocols for communication purposes. यहाँ पर हम दो तरह के मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए. OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल. दोनों मॉडल्स यहाँ पे कुछ लेयर्स के अंदर जिनको कैटेगराइज किया गया है. तो OSI लेयर 7 लेयर यूज़ करती है एंड TCP/IP 5 लेयर्स. हर एक लेयर, ईच एंड एवरी लेयर यूजेस सम प्रोटोकॉल्स. यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है जिनको कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि OSI मॉडल किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन सी लेयर्स इसमें दिखाई गई है. OSI लेयर इज़ OSI मॉडल इज़ डिफाइंड इन 7 layers. These 7 layers are application layer, presentation layer, session, transport, network, data layer and physical layer. These are in top to bottom approach. The top layer is application layer and the bottom layer is physical layer. Here we can see in the image these applications, these layers. There are many networking devices that we have discussed in the previous videos. We can see where on which communication OSI layers these devices work. If we use repeater, if we talk about repeater, it can be used in the physical layer of OSI model. The bridge can be used in data layer. Router networking device can be used in network layer of OSI model, and gateway can be used in above top 4 layers of OSI model. We can also see in the manner that which kind of networking devices use which kind of protocols and on which layer of OSI model. अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर के बारे में, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जो कि ये यूज़ करता है, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, टेलनेट, DNS, NNTP एंड NTP. सेकंड, प्रेजेंटेशन लेयर. हर एक लेयर, OSI लेयर यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी यूज़ करता है और इनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. तो प्रेजेंटेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन.
data format, data format detection, syntax and semantic of data. थर्ड सेशन लेयर. सेशन लेयर की यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सेशन मेकिंग, पोर्ट चेकिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTP protocol. Both can be used in session layer combinedly. Third, okay, now fourth, transport layer. So the responsibility of fourth layer, transport layer, is end-to-end data delivery, and here transport control protocol TCP and user datagram protocol UDP, both protocols can be used combinedly on transport layer. And the other responsibility of transport layer is segmentation, data error detection and flow control. Okay, now let's come to the network layer. That is very important if we are using internet. So IP tagging, router configurations, IPX means packet exchanging and fragmentation. These kind of things are the responsibilities of network layer. Next, what data layer does? So data layer handles the frames, MAC tagging, switch, flow control in local area network, error control by cyclic redundancy check, and the last and the bottom layer of OSI layer, that is physical layer, handles the bits. So physical layer work on the cables. So we exchange the information in the form of 0 and 1 binary, so it handles binary representation of data, signals in the analog form, bits transmission. The device like hub can be used on physical layer, hub, repeater. These devices can be used on physical layer, and hub physicals. Okay, so this handles the cables. So this is entire OSI layer, and let's see this by one example. अगर हम एक एग्जाम्पल को लेकर बात करें कि OSI मॉडल किस तरह से वर्क करता है, तो हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस है, एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है. अगर हम सेंडर से रिसीवर को कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट्स सी वी आर यूजिंग व्हाट्सएप फॉर सेंडिंग द मैसेज. सो वी टाइप एनी मैसेज इन द एप्लीकेशन, in the WhatsApp, in the application. So that is application layer, and उस एप्लीकेशन के अंदर क्या किया जाएगा कि जो मैसेज हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा. तो इस तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करेगी. थर्ड, सेशंस बनाने होते हैं कि जो पर्सन सेंड कर रहा है वो लॉग्ड इन है या नहीं है. इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेशन मेकिंग कहा जाता है. तो ये सेशन लेयर हैंडल करेगी. थर्ड, एंड देन एंड टू एंड डिलीवरी, कि ये जो मैसेज टाइप किया जा रहा है व्हाट्सएप पे, ये किसी एक पर्सन को एंड टू एंड डिलीवरी यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है, ये कौन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा. दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP प्रोटोकॉल. ओके, एंड देन जब इसको नेटवर्क पे सेंड करना होगा, देन वी यूज़ IP एड्रेसेस टू ट्रांसफ़र द मैसेजेस ऑन अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन IP एड्रेस. सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि IP एड्रेसेस एक पैकेट बनाया जाता है जिसके अंदर सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कितनी लेंथ का यहाँ पे डाटा सेंड किया जा रहा है, इसके अलावा लेंथ कितनी है डाटा की, ये सभी एक पैकेट के अंदर कलेक्ट करके एक पैकेट बनाया जाता है. और इस पैकेट के साथ ही TCP को भी ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण ताकि इसमें रिलायबिलिटी ऐड हो जाए, क्योंकि TCP प्रोटोकॉल रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है.
अगर हम TCP यूज़ नहीं करेंगे तो रिलायबल नहीं रहेगा हमारा जो मैसेज है। इसके बाद में डाटा लेयर क्या करेगा कि जो पैकेट्स है हमारा जो एंटायर मैसेज है उसको फ्रेम्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। उन फ्रेम्स को ऊपर मैक टैगिंग की जाती है और इस तरह की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डाटा लेयर पे हैंडल किया जाता है। और फाइनली फिजिकल लेयर के थ्रू इसको हमारे डिवाइस से किसी और डिवाइस में, जैसे कि अगर हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं तो केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज़ ऑन द नेटवर्क। और नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से इसको सर्वर डेस्टिनेशन सर्वर पर सेंड कर देगा। अब ये जो OSI लेयर कम्युनिकेशन कम्प्लीटली हमारी डिवाइस पे इस्टेब्लिश हुआ, हमारे डिवाइस पे वर्क किया, उसी तरह से ये डेस्टिनेशन डिवाइस पर भी वर्क करेगा, बट इन द रिवर्स केस, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले फिजिकल लेयर पे वर्क होगा, फिर उसके बाद डाटा लेयर पे, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, और तब जाके वहाँ पर सामने वाली जो डिवाइस है उस पर वो मैसेज एप्लीकेशन पे दिखाई देगी। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ OSI लेयर वर्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ HTTP प्रोटोकॉल। हियर HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मीनिंग होता है यहाँ पे कि एक इस तरह का आर्किटेक्चर, जैसे कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही वर्क करता है। इसके अंदर कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं जो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, और सर्वर उनको बदले में रेस्पॉन्स सेंड करेगा, तभी उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और इन्फॉर्मेशन को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट HTTP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करता है। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं और ये यूज़ करता है पोर्ट नंबर 80 फॉर एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन। HTTP protocol has been in use by वर्ल्ड वाइड वेब सिंस 1990। तो 1990 से इसको वर्ल्ड वाइड वेब पर, जनरली इंटरनेट पर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ डज HTTP हेल्प टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। हम बोल रहे हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज होता है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल HTTP यूज़ करता है। तो किस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, लेट्स सी इन ब्रीफ। तो जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है क्लाइंट के द्वारा, और उस रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले में एक रेस्पॉन्स सेंड करेगा। तो रेस्पॉन्स वो क्लाइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद ही यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। सो फर्स्ट स्टेप, क्लाइंट जनरली होता क्या है कि हमारे, जैसे कि हम कंप्यूटर पे google.com, amazon.com या कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं तो वो जनरली ब्राउज़र की हेल्प से ही करते हैं। तो ब्राउज़र क्या करेगा, यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। अब वेब सर्वर तक वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी। वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और उसके बाद में उनके सिस्टम पे वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगी एप्लीकेशन की हेल्प से। अब बदले में क्या होगा कि सर्वर रिटर्न्स एन HTTP रेस्पॉन्स। अब सर्वर रेस्पॉन्स करेगा, आउटपुट देगा जो कि हमारे ब्राउज़र पे शो होगा किसी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, कि जनरली हमने किसी प्रोडक्ट को सर्च किया है तो उस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उनके सिस्टम पे उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा उनके डेटाबेस के अंदर, और फिर उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कर देगा।
और वो हमें अपने ब्राउज़र पे दिखाई देगी। और फाइनली हमारा जो ब्राउज़र जो क्लाइंट होता है वो उस रेस्पॉन्स को रिसीव कर लेता है। तो ये एक साइकिल होता है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसमें HTTP प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हम बात करते हैं HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे HTTP का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये उसी का सिक्योर वर्जन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो HTTPS एक सिक्योर वर्जन है HTTP प्रोटोकॉल का ही, दैट यूजेस SSL TLS प्रोटोकॉल। तो इसके साथ एक दूसरा प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, SSL प्रोटोकॉल या फिर TLS प्रोटोकॉल, जो कि एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि HTTPS ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड एंड एन्क्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS पोर्ट नंबर 443 पर वर्क करता है फॉर एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन, जबकि हमने HTTP प्रोटोकॉल देखा था दैट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 80 बाय डिफ़ॉल्ट। HTTPS protocol makes it possible for website users to transmit sensitive data such as credit card numbers, banking information, login credentials securely over the internet। तो HTTP प्रोटोकॉल्स आजकल तो जनरली एक वार्निंग भी आने लग गई है ब्राउज़र्स पे। जब हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो गूगल क्रोम वांट्स दैट इफ़ you are providing any kind of information like credit card, banking information, login credentials, so then check the log button in the URL at the top of the browser। so अगर HTTP कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो तो सिक्योर नहीं है, और अगर HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो तो वो सिक्योर माना जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसका बेसिक किस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊपर एक लॉक का सिंबल बना होता है। अगर लॉक का सिंबल बना है, ग्रीन पैडलॉक का सिंबल बना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ HTTPS कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IP के बारे में। तो IP को यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सो फॉर मूविंग डाटा पैकेट्स हैविंग 32 बिट IP एड्रेस। तो IP जनरली एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। IP के अभी 2 वर्जन्स अवेलेबल है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 वर्जन 4 जो प्रोटोकॉल है उसकी लेंथ है 32 बिट। IP जनरली एक एड्रेस की तरह होता है जो कि इंटरनेट पे सेंडर और डेस्टिनेशन का अपना अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। तो वर्जन 4 और वर्जन 6 IPv4 IPv6 दो टाइप के IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो IPv4 जो होता है 32 बिट का एड्रेस यूज़ करता है, और IPv6 128 बिट लेंथ का यहाँ पे एड्रेस यूज़ करता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये एक कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो IP एड्रेस क्या होता है कि जनरली सेंडर और एड्रेस का ओनली एड्रेस को बताता है। यहाँ पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में इतनी हेल्प नहीं करता है और अनरिलायबल होता है। बिल्कुल भी इस पर रिलायबल नहीं रहा जा सकता, ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है अगर हम ओनली इसको यूज़ करें। तो इसके साथ इट एंश्योर्स नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो अगर हम केवल IP यूज़ कर रहे हैं तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा भी या नहीं होगा। तो इसको रिलायबल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो सेंडर साइड से IP पैकेट क्रिएट किया जाता है, उस IP पैकेट के साथ में TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है
उसे भी ऐड कर दिया जाता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हमने देखा था कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए। तो आईपी के साथ टीसीपी को यूज़ किया जाता है और इसी बेसिस पे ओएसआई मॉडल के अलावा सेकंड मॉडल जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसको तैयार किया गया था कि हाँ बिल्कुल टीसीपी के साथ आईपी को यूज़ किया जाना चाहिए टू मेक द कम्युनिकेशन सिक्योर एंड रिलायबल एंड प्रोवाइडिंग द एंड टू एंड डिलीवरी रिलायबिलिटी विद रिलायबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं कि एक आईपी डाटाग्राम है और आईपी डाटाग्राम आईपी पैकेट के साथ में ही टीसीपी सेगमेंट को भी ऐड कर दिया गया है। तो आईपी का जो पैकेट बनता है उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन होती है, आईपी सेंडर, आईपी रिसीवर, आईपी लेंथ, कौन सा वर्जन यूज़ किया गया, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ ही टीसीपी सेगमेंट को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं टीसीपी एनकैप्सुलेशन इन आईपी डाटाग्राम। अब हम बात करते हैं कि टीसीपी क्या होता है। तो टीसीपी इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं हम आईपी के साथ में। तो आईपी के साथ में टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है टू मेक द कनेक्शन रिलायबल। जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं पैकेट्स का, जो एक्चुअली हम मैसेज है जो कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेंडर ए से सेंडर बी तक, तो उस मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है और वो पैकेट्स को ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये जो पैकेट्स है इस ट्रांसमिशन को रिलायबल बनाने के लिए आईपी एड्रेस के साथ में आईपी डाटाग्राम के साथ में टीसीपी सेगमेंट्स को भी ऐड किया जाता है। तो यही यूज है टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज बैकबोन फॉर कनेक्शन। तो यही वो रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन है जो कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है विद रिलायबिलिटी एंड विद द गारंटी ऑफ एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। क्योंकि टीसीपी ही चेक करता है कि कोई भी पैकेट जो सेंडर से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र किया गया है वो सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेंड नहीं हुआ है तो इस पर कई सारी मैकेनिज्म को ये यूज़ करता है, जैसे कि पैकेट्स को डिटेक्ट करता है, पैकेट्स सेंड हुए या नहीं हुए। अलग अलग इस पे एल्गोरिथम्स वर्क करती है, जैसे कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और भी अलग से एल्गोरिथम्स होती है। तो इस तरह से तो पैकेट से सेंड हुए या नहीं हुए, एंड टू एंड डिलीवरी टीसीपी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये कुछ मैकेनिज्म को यूज़ करता है टू सॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम पैकेट बेस्ड मैसेजिंग। तो कोई भी पैकेट अगर लॉस्ट हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आ गए, या कोई पैकेट डुप्लीकेट हो गया, कोई पैकेट करप्ट हो गया, तो इस तरह के लिए अलग अलग डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म को यूज़ करता है। साइड में इमेज में आप देख सकते हो कि जैसे टीसीपी जो होता है, टीसीपी हेडर फॉर्मेट इस तरह की होती है कि जनरली 32 बिट एड्रेस यूज़ किया जाता है टीसीपी को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें सोर्स का पोर्ट और डेस्टिनेशन का पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस नहीं लिखा जाता है, वो एक्चुअली ओनली आईपी पैकेट के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर हम केवल पोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा पोर्ट अवेलेबल होते हैं, कई सारे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो उसको कौन सा पोर्ट पे हमने कंप्यूटर तक तो आईपी के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया, लेकिन उसको कौन सा पोर्ट पे सेंड करना है वो टीसीपी डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे सोर्स का पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर लिखा जाता है। इसके अलावा सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर की लेंथ कितनी है, रिजर्व्ड बिट्स कितने हैं, चेकसम कितने बिट का यूज़ हो रहा है, लाइक 16 बिट। तो इस तरह के कई सारे ऑप्शन होते हैं जो इसके साथ इंक्लूड किए जाते हैं टू मेक द कंप्लीट टीसीपी हेडर
जिसको आईपी डाटाग्राम के साथ मर्ज किया जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इज़ अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड for the transfer of computer files from a server to a client on a computer network। तो जनरली एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना है, तो सर्वर से अगर हमें किसी क्लाइंट को फाइल सेंड करनी है तो जनरली इस प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया जा सकता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जनरली दिस इज़ बिल्ट ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर ऑल्सो, using separate control and data connections between the client and the server। तो हम जिस तरह से HTTP TCP इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए FTP, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है, और HTTP और TCP का यूज़ होता है ओनली कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और एंड टू एंड डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे FTP जो है किस तरह से वर्क करता है कि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन ईमेल पासवर्ड्स इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल नहीं यूज़ करने के बजाय यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट साइन इन। तो जनरली एक बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में आईडी पूछा जाता है कि आपका आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इसको आप चाहे तो कन्फिग्योर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड एनोनिमसली भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा कन्फिग्रेशन कर दें। ठीक है, तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड सिक्योर ट्रांसमिशन करने के लिए that protects the username and password and encrypt the content, FTP is often secured। तो ये जो FTP प्रोटोकॉल है इसके साथ में SSL और TLS प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र को और सिक्योर बनाने के लिए, और रिप्लेस्ड विद SSH फाइल। तो एक सिक्योर शेल नाम की फ़ाइल होती है, तो सिक्योर शेल फाइल में भी इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कन्वर्ट करके SFTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके। तो ये होता है पूरा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो जनरली हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ PPP प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर PPP प्रोटोकॉल को डाटा लिंक लेयर पर यूज़ किया जाता है। इसके फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है, और बिटवीन टू राउटर्स डायरेक्टली, दो राउटर्स के बीच में डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और विदाउट एनी नेटवर्किंग इन बिटवीन, दो राउटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए PPP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। और अगर राउटर्स की बात हो रही है तो हम जनरली कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर की बात हो रही है इन द OSI मॉडल। इट कैन प्रोवाइड ऑथेंटिकेटेड कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन जो है ऑथेंटिकेटेड किया जा सकता है, एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन किया जा सकता है, और डाटा को कंप्रेस भी किया जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट कनेक्शन किया जा सकता है, एनक्रिप्ट किया जा सकता है और कंप्रेस किया जा सकता है। दिस प्रोटोकॉल PPP इज़ यूज्ड ओवर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क्स, जैसे कि सीरियल केबल, फ़ोन लाइन, ट्रंक लाइन्स, सेलुलर टेलीफोन्स, स्पेशलाइज्ड रेडियो लिंक्स, ISDN एंड फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स जैसे कि सोनेट। तो ये सभी फिज़िकल नेटवर्क्स है जो कि PPP प्रोटोकॉल को अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने डिवाइसेस के बीच में, राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टेलनेट। टेलनेट भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है
जिसको कि किसी दूसरे कंप्यूटर पर वर्चुअली एक्सेस गेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली हम बोलें कि कोई कंप्यूटर है हमारे, एक ईथरनेट, हमने कोई लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है, उसके अंदर एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे हम वर्चुअली एक्सेस गेन करना चाहते हैं कि उस कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस अगर हम गेन कर सकें तो टेलनेट प्रोटोकॉल इस तरह के रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है। सो Telnet is a network protocol used to virtually access a computer and to provide a two-way collaborative and text-based communication channel between two machines। यहाँ पे टेलनेट को हम जनरली कमांड लाइन पर ही यूज़ करते हैं, CMD का यूज़ करके। तो ये जनरली टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन ही होता है। अब यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वो भी TCP प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है, TCP IP प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है रिमोट सेशंस को क्रिएट करने के लिए। अगर हम वेब पर बात करें, HTTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपली इनेबल यूजर्स टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक फाइल्स फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर्स वाइल थ्रू टेलनेट। अगर हम इंटरनेट पे बात करें, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर बात करें, तो HTTP, HTTPS, FTP, IP प्लस TCP ये प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। और अगर हम टेलनेट की बात करें तो टेलनेट क्या करता है, यूज़र्स को कैन log on as a regular user with the privileges they are granted to the specific applications and data on that computer। सो जनरली होता क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब वर्चुअली लॉगिन कर रहे होते हैं, रिमोट सेशन बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ही किसी कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस किया जा सकता है, रिमोटली लॉगिन किया जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट सर्विस इन द कंप्यूटर्स। So this was all about networking protocols. Today in this video we have discussed about what is network protocol, what different kind of network protocols we use, and what is OSI layer, and which kind of devices like bridge, gateway, repeaters, hub work on which layer of OSI layer, and all the different layers of OSI layer support which protocols and which responsibilities are of different layers. So we have discussed all the important network protocols like HTTP, HTTPS, FTP, Telnet and all. So in the next videos we'll discuss about other topics, and if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.